स्कूल के क्लासरूम ही याद आते हैं. Actually my mom's a teacher, so in fact she owns a play school and वो छोटे बच्चे को सिखाते हैं and उसी उम्र में हम चौक और डस्टर के साथ you're learning to draw first on the blackboard and then slowly on paper and everything. So it's very special, this film, especially since, like I said, I come from an educational background. My mom and my grandmom, everyone is in the education system, teaching and imparting knowledge. So it's exciting. I'm looking forward to watching the film. बॉलीवुड में बहुत कम फिल्में बनती हैं जो मैसेज देती हैं, ज़्यादातर एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर. तो कितनी एक्सपेक्टेशंस है आपको इस फिल्म से? क्या सोचते हैं इस फिल्म को? I think it's very interesting that films with social messages are being made, and expectations, I think it's anything which has a social message. Expectations ऐसा कुछ नहीं है, बस inspirational होता है, and I just hope that more people go and watch a film like this. आपको भी कभी फ्यूचर में फिल्म डायरेक्ट करना चाहें, बनाना डायरेक्ट मुझे एक्ट करने दो यार. कैसी फिल्में बनाना पसंद करेंगे? डायरेक्शन का तो कोई सपना नहीं है, बट एक्टिंग का है. तो if I have to act in any of those films right now, I'm so new that I want to act in almost everything. चाहे एक्शन हो, सोशल मैसेज हो, पीरियड फिल्म हो, रोम कॉम हो, everything. Thank you so much. Thank you. To comment on that. Well, it's very heartening to hear that the film's been tax-free in so many states, and the kind of audience response we are getting, I'm really glad. It's a simple, beautiful film, and I think everyone's relating with it, and it's a word of mouth, and it's great to see that the word is spreading beautifully and gradually. फिल्म में हम देख पा रहे हैं कि आप जो हाल फिलहाल में जितनी भी फिल्में आई हैं, सब में गंभीर किरदार अदा कर रहे हैं. उसका कोई आप बुजुर्ग जैसे किरदार चाहिए या फिर आप ऐसे आपको ऑफर होते हैं? I think ऑफर होते हैं, और ये तो मेरे लिए बिल्कुल मुख्तलिफ रोल है, एकदम नेगेटिव रोल है. काफ़ी सारे हेट मेल्स मिले हैं मुझे, और हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है कि आपको उनके नफ़रत के रूप में आपको लोग प्यार करते हैं. सो दैट्स रियली नाइस. तो मेरे लिए पहली बार है दैट आई एम गेटिंग सो मच हेट. बच्चों से, मैं अपने फ्रेंड्स के बच्चों से बात कर रही थी, तो they were like hi didi, so like इतना घबरा क्यों रहे हैं. So they just saw chalk and duster. Lots of beautiful messages coming for the movie, and सब relate करते हैं कहीं ना कहीं, and to be nasty to Shabana जी and to Juhi, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन बहुत उन्होंने हेल्प की to be mean to them, and I really enjoyed it. आज तक का बेस्ट जो कॉम्प्लीमेंट जब से फिल्म रिलीज हुई, सबसे अच्छा कौन सा कॉम्प्लीमेंट मिला? Right here, I got it from Helen जी. She was watching the film, और मैं कहीं पर थी, और मुझे फ़ोन आया कि she wants to meet, and I just came, and she said I really hate you in this film, and I think coming from her, who's been such a veteran, I really loved it, and I'm oh God, I wish no, not at all, please. नहीं. Some of movies based on commercialization of Indian education system. You comment on that. Your view. I think it is shameful that in professions like education and professions like medicine, we commercialize things, and because this is something which is so integral for our very life. And education को I think वैसे ही idealistic, वैसे ही रखना चाहिए strong जैसा कि है, क्योंकि हम ताउम्र उस education के साथ, उस नींव के साथ रहते हैं. So I think business अपनी जगह, और पढ़ाई और education अपनी जगह. So I think this film is quite an eye opener for many people. इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता था ऐसे थोड़ी होती हैं, मैं क्यों करूँ ऐसे. They said actually it happens, and I'm really shocked to hear that. So I'm sure lots of people are going to watch it, and like me, just find it an eye opener. Then recently Aamir Khan has said that he would be happy to work with Sunny Leone. So now someone past can steps in future. You comment on that? Darling, it is somebody's comment for somebody else. How am I concerned with So would you like to work with Sunny Leone? I have already worked with her, and I loved working with her, and why not? Thank you. चाहेंगे आपसे कि आप फिल्म देख चुके हैं कि अब देखेंगे? जी, मैं फिल्म देख चुका हूँ. दोबारा देखने आपकी कोई वजह है फ्रेंडशिप के लिए? जी देखिए, बात फ्रेंडशिप की नहीं है, बात यह है कि सबसे पहले तो हम इस फिल्म का हिस्सा हैं, एंड जब आप किसी फिल्म के हिस्से होते हैं तो आप चाहते भी हैं कि आप उस फिल्म को प्रमोट करें और आप उस फिल्म को पुश करें जितना आप कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ हूँ बिकॉज इट्स अ फिल्म दैट आई एम पार्ट ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ, टू प्रमोट इट, टू सपोर्ट इट. किस तरह के कमेंट्स मिले यहाँ तक, और सबसे बेस्ट कमेंट कौन सा रहा है? बेस्ट कमेंट तो अभी तक का ये रहा है कि मेरी एक ट्यूशन टीचर हुआ करती थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके डांटा है
कि तुम इतने ईविल कैसे हो सकते थे टूवर्ड्स टीचर्स, मैंने क्या कमी कर दी। मैंने उनको समझाया मैम ये सब एक रोल है। एंड कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, हर जगह से। अब सोशल मीडिया इतना हो गया है कि आपको पता ही चल जाता है कि ऑडियंस को कैसी लग रही है फिल्म। एंड द ऑडियंस पोल इज़ फैंटास्टिक, सो इट्स ग्रेट। So commercialization of Indian education system, basically the movie is based on that. So did you too faced in when you studying past time this problem? जी देखिए, इस तरीके से मैंने अभी तक वैसा फेस नहीं किया है, क्योंकि या तो मेरे माँ बाप ने फेस किया होगा या तो मुझे बच्चा पैदा करना पड़ेगा तब मैं फेस करूँगा। और फिल्म के करते हुए या फिर फिल्म को देखते हुए आपको अपने बचपन की याद है कि कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ, या कैसे स्टूडेंट था स्कूल? जी देखिए, मैं बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, हमेशा से स्टैंड आउट ही करता था क्लास के। या तो मैं ज़्यादा बेंचेस पर खड़ा रहता था, बहुत कम बैठा था, और मेरी टीचर्स मुझसे तब भी बहुत प्यार करती थी, मुझे पता नहीं क्यों। एंड मैं चाहता था उनका, मैं बहुत मिस्टीरियस था, पीछे बैठना चाहता था लेकिन हमेशा आगे बैठा दिया करता था। और इट वाज अ लॉट ऑफ फन, स्कूल वाज फन बिकॉज ऑफ द प्रैंक्स, बिकॉज ऑफ द मस्ती, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, बट यू मिस योर टीचर्स। एंड मजाक की बात है लेकिन इसको सीरियसली भी लिया जा सकता है कि हम में से कितने हैं जो हमारी पुरानी टीचर्स को आज भी याद करते हैं या टच में रहते हैं। आप अपने बच्चों को परवरिश कैसे करनी चाहेंगे? पहले शादी तो कर दो। फिर भी प्लान्स क्या है कि ऐसा ही कुछ होगा कि बिल्कुल ही अलग हो जाएगा? देखिए, जब होगी, जब होगा तब देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, जूही जी ने मुझे बुलाया है अपने ये शो दिखाने के लिए, लेकिन मैं पहले ही देख चुका हूँ। 3-4 दिन पहले हमने जब फिल्म देखी अपनी फैमिली के साथ, ये सच है वाकई कि जैसे मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि मतलब जिसमें एक मैसेज है। फिल्म देखने के बाद मेरे को ज़्यादा ये हुआ, मैं थोड़ा दुखी भी हुआ कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैंने कभी स्कूल देखा नहीं, मैं नर्सरी के जी भी नहीं पढ़ा, सबको पता ही है। पर मेरे को लगा मैं किसको फ़ोन करूं, एक ऐसा मैसेज है, ऐसी चीज़ है कि कभी आपने अपनी टीचर को जहां जिससे आप पढ़े हो अपने कभी फ़ोन कभी किया, कभी मैसेज किया, ये एक मैसेज है। लेकिन ये फ़िल्म देख के पता चलता है, मतलब रोना आ जाता है कि क्या फ़िल्म है, क्या मैसेज है, क्या क्या होता है स्कूल कॉलेजों में। ये तो फिल्म हर स्कूल में, हर कॉलेज में फ्री मतलब हो जाए, मैं कहता हूँ सबको दिखानी चाहिए ऐसी फिल्म। मैंने बरसों बाद ही ऐसी फिल्में बनती हैं कि ये इस फिल्म में मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें ये नहीं देखा गया कि इसमें कमाई कितनी होगी, पैसा कितना कमाया जाएगा, ये देखा गया कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं, क्या फिल्म है। मैं तो बहुत खुश हूँ। यार तुम लोग होमवर्क नहीं करते हो? मैं इस फिल्म में हूँ यार, मेरी फिल्म है। आई वुड से थिएटर्स में, मतलब स्क्रीनिंग पे घुमा लिया बात को। अच्छा है। हाँ देखिए, ऑब्वियसली डबिंग करते हुए देखी थी वो। उस टाइम वैसे क्या रिएक्शन थे? आई थिंक रिएक्शन ये था क्योंकि काफ़ी स्वीट फिल्म बनी है। आई रिमेंबर मैं शबाना जी से बात कर रहा था, उनका भी रिएक्शन था, काफ़ी साफ़ सुथरी फिल्म है। तो इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म, सिंपल फिल्म और सिंपल स्टोरी है। एंड आई थिंक आज के नए दौर में जहाँ काफ़ी लार्ज स्केल में फिल्में बनाई जाती हैं, जहाँ में स्पेशल इफेक्ट्स होता है, ये होता है, इट्स अ वेरी सिंपल स्वीट फिल्म। अगर आपने 80s में ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी की फिल्में देखी हो तो उस तरह का एक फ्लेवर है। और जो कास्टिंग भी है वैसी है, जैसे गिरीश कर्नाड है, शबाना आज़मी है, जूही है, मैं हूँ, दिव्या है, जरीना वहाब हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस फैमिली फिल्म जो आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे सब देख सकते हैं। हाँ, हर कोई इंसान, मतलब हर कोई जर्नलिस्ट से यही सवाल पूछा कि आप स्कूल में कैसे थे, क्या यादें ताज़ा हुई। एक बात तो रियलाइज़ हुई, आई थिंक जूही ने भी पॉइंट आउट किया था कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बिना कोई और प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर, एक्टर, उस हर एक चीज़ के लिए एक टीचर ज़रूरत होती है। और हम कैसे आसानी से भूल जाते हैं कि हमारी टीचर कौन थी। और तो काफ़ी पास्ट में गया, मुझसे सोचा कि मैं स्कूल में था, मैं कैसा बच्चा था और टीचर्स की तरह तंग करता था कि नहीं करता था।
तो हाँ, तो काफ़ी यादें ताज़ा हुई। चॉक एंड डस्टर सुनते ही ऑफकोर्स स्कूल की याद आती है एंड इट्स वन ऑफ द फेवरेट फेजेस ऑफ आवर लाइफ्स जो स्कूल होता है एंड दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो कि दिस एंटायर मूवी इज़ अबाउट एजुकेशन एंड इट्स अबाउट द पॉलिटिक्स इन एजुकेशन सो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट हैं एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर। मेरा पेट नेम नॉटी था, मैं बहुत नटोरियस बच्चा था, लेकिन कहते हैं कि जितने नटोरियस बच्चे होते हैं वो ज़िंदगी में काफ़ी आगे जाते हैं। So God is kind because like they say books smart से अच्छा street smart होता है, तो I believe that's what every kid needs to be. मेरे school days में I was very good at sports and academics I was average, कभी distinction कभी first class types, लेकिन वो finals में बाकी सारे जो in between phase था उसमें fail हो के आगे बढ़ता था। I haven't seen it yet. उम्मीदें बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं to watch the film. And because it's Juhi ma'am, it's Shabana ma'am, it's Divya ma'am, all of them coming together, so I'm sure the script has to be something really amazing and I'm really looking forward to it. Fingers crossed. आऊँगा तो ऐसा आऊँगा, छा जाऊँगा. Thank you so much. हाँ, यादें तो बहुत जुड़ी हुई हैं चॉक एंड डस्टर के साथ। हर बच्चा स्कूल जाता है और ऐसी बातें तो ज़रूर याद रहती हैं, काफ़ी मज़ेदार बातें भी याद रहती हैं, कभी कभी पिटाई भी याद रहती है, तो याद तो आती है। मैं देखने आया हूँ एक बेहतरीन उम्दा फिल्म, क्योंकि इसके पीछे अच्छे लोग हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस रादर, और मैं जानता हूँ कि ज़रूर फिल्म अच्छी होगी, इसीलिए आया हूँ। तो मैं इन सब लोगों को मेरी तरफ से बधाई और ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी लगे लोगों को, मैं यही चाहूँगा। नहीं, मैं बिल्कुल शरारत नहीं करता था, मैं बहुत ही सीधा साधा स्टूडेंट था, लेकिन चॉक एंड डस्टर सुनते ही ऑब्वियसली स्कूल की बातें ज़्यादा होती हैं, स्कूल के टीचर याद आते हैं, और स्कूल के दिन ही वो दिन होते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल केयरफ्री होते हैं। इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है पढ़ाई का वो कभी भी आपको ऐसा लगता नहीं, महसूस नहीं होता है, एंड दैट इज़ इन अ ग्रेट डील बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स, द वे दे हैव ब्रॉट अस अप, द प्रिंसिपल्स हैव इनकल्केटेड इन अस। तो आई थिंक मस्ती वाले दिन याद है। नहीं, अभी तक देखी नहीं है, देखने के लिए उत्सुक हूँ, इसीलिए तो आ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हर किस्म की फिल्म देखते हैं यार, चाहे वो मारधाड़ वाली हो। मारधाड़ वाली फिल्मों में भी मैसेज होता है, कैसे विलेन को मारा जाए, और मैसेज वाली फिल्में भी देखते हैं। ख़ासकर ये वाली फिल्म देखना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें दो मेरे बहुत ही प्रिय कलाकार हैं, जूही जी और शबाना जी, जो मेरी अरसे से फेवरेट है। इनकी फिल्में देख देख के प्रोत्साहित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं अच्छा काम करने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए। वो भी एक मकसद है आज फिल्म देखने आने। बेस्ट विशेस तो शबाना जी तो जानती हैं उनके लिए मेरी क्या फीलिंग्स हैं, उनके लिए मेरी बेस्ट विशेस, उनकी बेस्ट विशेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जूही दोस्त हैं तो जूही के लिए हमेशा से बेस्ट विशेस ही रहें। वो जो भी काम करती हैं बहुत ही डिग्निफाइड होता है। जिस किस्म की फिल्में आजकल कर रही हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और मुझे उम्मीद है कि चॉक एंड डस्टर भी वैसी ही फिल्म होगी, और जो इन्होंने अभी तक कमाया है उस नाम को, उस रुतबे को, उस ब्रांड को आगे ले जाएगी।